2002. He left ARL in 2013 to join Institute of Space Technology as professor in material science and engineering. Dr. Vilayat has more than 100 international research publications on his credit, along with a book on material thermodynamics. He is serving as member of National Curriculum Committee of HEC and PEC. Please welcome Dr. Vilayat to deliver his talk on the topic Structure Property Relationship in Aluminium Alloys. अस्सलाम वालेकुम। तो हम कॉर्पोरेट सेक्टर से दोबारा से लैब में आ जाते हैं। टॉपिक थोड़ा सा बहुत वास्ट है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें मज़े की आपसे शेयर करनी है। स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी रिलेशनशिप थिंग्स आर जनरल अप्लाइड टू एल्यूमिनियम alloys. This is the definition of materials engineer or material scientist. Property is the requirement. And how you get those properties depends on the structure. How you get that structure depends on processing. So if you can understand this triangle, you become materials engineer or material scientist. And the structure starts from the atoms. कौन से atoms हैं, फिर वो atoms कैसे arranged हैं, यहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं। और ये पूरा ये लेवल है इनका डायमेंशन का। Atoms will define the characteristics. Atomic bonding will define the characteristics. And then how they are arranged in crystalline form. And that order is disturbed by the defects, so-called defects, but they are important, which will control the mechanical properties. Then we get into from nano level we get into micro level, where we talk about the grain size, precipitates, these kind of things. And finally, when you make the product, then come the defects from the manufacturing. But in addition to defects, you also get effects. Like forging has its own effects as compared to casting. तो डिफेक्ट्स के साथ साथ हम इफेक्ट्स को भी देखते हैं ऑन मैक्रो लेवल। तो मैंने कहा थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से देखते हैं, ज़रा एटम से शुरू करते हैं ना। तो बड़ी मज़े की चीज़ें सामने आई। तो देखें, एल्यूमिनियम हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू मेनी अदर मेटल्स, 660 डिग्री सेंटीग्रेड घरों में मेल्ट कर लेते हैं लोग। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? लो मेल्टिंग पॉइंट means the binding energy is low, and that would also mean that lattice parameter is slightly larger. That would mean the modulus of elasticity is low. That would mean the thermal expansion would be high. All things are related. And then because of the low melting, low binding, atomic mobility is high. What that indicates, you may get room temperature aging in case of aluminum alloy because of the atomic mobility. And then creep phenomena will occur even at lower temperature. So all these things are related to the melting point, the binding energy. So I compiled this data. This is interesting. Comparing various metals which have face-centered cubic structure, and you can see that melting point is increasing, the lattice parameter is decreasing, the modulus of elasticity is increasing, and coefficient of thermal expansion is decreasing. They are all related. Good. Then talk about conductivity.
both thermal electrical conductivity are related and that depend on the atoms. But we get into one trouble. Aluminum is a very good conductor, but that conductivity is good when it is pure, but pure metal does not have good strength. So if you want to increase the strength, you will lose conductivity. So a lot of work is being done on this thing. You do not compromise conductivity, but you increase the strength. A lot of research work is being done, and it is a hot topic nowadays. Whatever you want to do to increase the strength, in general, it will increase the resistance. So there are ways and means. And one thing in the latest paper, this is the approach. They're talking about elongated grains, texture, nanoscale precipitates. They would like to add some elements which do not go into the solid solution. They will make very fine precipitates outside of the lattice. So you will increase the strength, but conductivity is not significantly disturbed. And there's a lot of work, beautiful work people are doing, especially addition of rare earth elements. This is a hot topic nowadays. When we talk about corrosion, we know that aluminum is a very reactive matter, but fortunately it forms a passive layer. What does a passive layer mean? You have very strong bonding with oxygen on the surface. It forms a tenacious layer, very thin layer, and then it stops diffusion of oxygen into the metal or diffusion of metal atoms to the surface. So you get into a difficulty in increasing the thickness of rust. We got this beautiful photographs. You have to appreciate. अपने लैब में हमने फील्ड एमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में किया था. एक बच्चा आया था बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से, सैंपल उसके बैग में था, कह रहा था कहाँ SEM कहाँ करूँ. तो वो मैं अपनी लैब में ले गया, हमने फोटो खींचा, बड़ा खूबसूरत फोटो आया था. इससे आपको एक फीलिंग होगी कि क्या कितनी ज़बरदस्त किस्म का अरेंजमेंट और वो होता है सरफेस पे एलुमिनियम. ये हमारे पर गुजरी है तो आपसे शेयर करना था कि प्योर एलुमिनियम हैज़ वेरी गुड corrosion resistance, लेकिन प्योरिटी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. और वैसे तो देखने में अजीब सा लगता है ना, 3.9 प्योरिटी 5.9 प्योरिटी, इसमें कितना फर्क हो गया, मामूली फर्क है, बट इट हैज़ क्रिएटेड लॉट ऑफ ट्रबल टू अस. गौरी मिदाइल का हम जब ऑक्सीडाइजर जो रखते हैं तो दैट इज रेड फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, और तो हर मटेरियल को खा जाएगा. वी रिक्वायर प्योर एलुमिनियम. तो थोड़ा पैसे बचाने के लिए कुछ लोगों ने हमारे 3.9 प्योरिटी एलुमिनियम लेके टैंक बना लिए थे. उसके बाद बहुत बुरा असर हुआ था, तो थोड़ा पैसा खर्च कर दिया हमने. वी वेंट फॉर 5.9 प्योरिटी. दैट इज वेरी एक्सपेंसिव. लेकिन ये आता कहाँ से है? जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं एलुमिनियम में, ज़्यादातर जो इम्प्योरिटीज जिन्हें हम कहते हैं, इनकी सोलिबिलिटी कम है. दे विल मेक इंटरमीडिएट कंपाउंड्स, और फिर यू गेट माइक्रो गैल्वेनिक कोरोजन. स्पेशली आयरन क्रिएट्स प्रॉब्लम, और वो वहाँ से फिर जो शुरू होता है, तो द प्योरिटी बिकम्स सिग्निफिकेंट. अच्छा, जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनते हैं वो दोनों रोल प्ले कर सकते हैं. दे कुड बी एनोडिक, दे कुड बी कैथोडिक, और दोनों केस में प्रॉब्लम है. जब भी माइक्रो गैल्वेनिक आपका सेल छोटा बनना शुरू हुआ, आपका कोरोजन रेजिस्टेंस हाई हो जाती है. और ये तो बहुत कॉमन है कि यू गो फॉर हाई स्ट्रेंथ एलुमिनियम अलॉय 2000 सीरीज एलुमिनियम कॉपर अलॉय. यू गेट हाई स्ट्रेंथ बट यू गेट प्रॉब्लम इन कोरोजन. सो लोग जाते हैं क्लैडिंग के ऊपर, प्योर एलुमिनियम की लेयर ऊपर कर देंगे. बहुत सारे तरीके हैं बनाने के. तो यू गेट स्ट्रेंथ ऑफ 2024 एंड कोरोजन रेजिस्टेंस ऑफ प्योर एलुमिनियम. डक्टिलिटी हमें मालूम है, एलुमिनियम की डक्टिलिटी बहुत अच्छी है, एंड दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ एटम. वी हैव FCC स्ट्रक्चर 800 क्यूबिक. लेकिन ये आता कहाँ से? आप किसी से पूछें व्हाट इज द मेटल, तो सबसे पहले क्या कहते हैं? गुड कंडक्टिविटी, गुड लस्टर, और तीसरे नंबर पे गुड फॉर्मेबिलिटी. फॉर्मेबिलिटी आई कहाँ से? थोड़ा सा ज़रा डिटेल बता देते हैं आपको.
कि if you think about a perfect solid, you cannot deform it. It requires very high stress. तो लोगों ने सोचा और देखा कि अच्छा इससे कुछ सबक हासिल करते हैं अर्थवॉर्म की मूवमेंट से, और यहाँ से कॉन्सेप्ट आया डिसलोकेशन का कि देयर आर सम क्रिस्टलाइन डिफेक्ट्स विच कैन इजीली मूव व्हेन यू अप्लाई स्ट्रेस। यहाँ से हमने बहुत कुछ सीखा इस कॉन्सेप्ट से। शुरू में तो थ्योरी थी, लेकिन नाउ वी हैव हाई रेजोल्यूशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप माइक्रोस्ट्रक्चर on which we can actually see the arrangement of atoms. So these are real things. Actually these are real things in the nature. जहाँ भी ग्रोथ प्रोसेस होता है ये चीज़ें ऑटोमेटिक आती हैं। यानी मेटलर्जी के एल्यूमिनियम के उसमें छल्ली दिखा रहे हैं भाई साहब। See there is a dislocation here. So it is a natural process. आप जहाँ भी कहीं ग्रोथ हो रही होगी ना, ये फोटो मैंने खुद खींचा था, घर वाले कहते हैं पागल है, छल्ली खा नहीं रहा, फोटो खींच रहा है। बट यू विल ऑलवेज फाइंड एटलीस्ट वन डिसलोकेशन इन एवरी छल्ली। हाँ, बीच पे चले जाएं, डेजर्ट में चले जाएं, यू विल सी दिस पैटर्न, दिस आर नेचुरली ग्रोइंग पैटर्न। तो इसी तरह जब क्रिस्टल ग्रो करती है तो डिसलोकेशन वो आ जाते हैं, खुद ब खुद आ जाते हैं, आप उनको रोकना बड़ा मुश्किल काम है। और FCC में हमें ये मिलता है स्लिप प्लेन वेयर एटम्स आर टचिंग ईच अदर, सो स्लिप बिकम्स वेरी इजी मूवमेंट। और जब ऐसी प्लेन बहुत ज़्यादा होंगी तो दैट मेटल वुड बी हैविंग गुड डक्टिलिटी। तो ये बुक्स में आपको मिलेगी फोटो, दिस इज स्कीमेटिक स्लिप लाइंस, लेकिन ये इस तरह का एक्चुअल फोटो लेना इज नॉट ईजी। अच्छा, आई वॉज लकी, एक मतलब हुआ मैं SEM पे बैठा होता, एक बच्ची आई थी, यहीं से गई थी बच्ची, वो कंपोजिट पे काम कर रहे थे। कंपोजिट था एल्यूमिनियम कार्बन, और टेंसाइल टेस्ट किया, उसको तोड़ा तो फ्रैक्चर देखना शुरू किया तो ये नजर आया। बच्ची ने कहा 5 फोटो चाहिए डिफरेंट मैग पे, मेरा थीसिस हो जाएगा। और मैं बैठा देखता रहा कि ये क्या हो गया ड्रामा। डू यू सी लाइंस हियर? These are the slip lines. तो फॉर्चुनेटली मुझे ये स्लिप लाइन नज़र आ गई कि जैसे ये टूटता है तो इसके गिर्द आपको एक हॉलो सिलेंडर मिल जाता है एल्यूमिनियम का, और वो जब खींचेगा तो यू विल गेट स्लिप लाइन ऑन द सरफेस। और अगर आपको ये फोटो पसंद नहीं है तो वी हैव अनदर वन। इसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल गई कि यू हैव पॉसिबिलिटी ऑफ क्रॉस स्लिप इन एल्यूमिनियम, तो जिससे डक्टिलिटी और बढ़ जाती है। अच्छा, एक फीलिंग है डक्टिलिटी इज गुड, ब्रिटलनेस इज नॉट गुड, लेकिन डक्टिलिटी प्रॉब्लम भी तो क्रिएट कर सकती है। देयर आर एटलीस्ट 2 इंस्टेंसेस वेयर डक्टिलिटी क्रिएट्स प्रॉब्लम, वन इज फटीग एंड अदर इज क्रीम। तो अगर हम फटीग की बात करें, पहले डिटेल तो अभी नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा। तो फटीग इज बेसिकली ड्यू टू माइक्रो प्लास्टिसिटी एट माइक्रो लेवल। और उससे होता क्या है कि इस तरह की एलाइज FCC एल्यूमिनियम, इनमें आपको फिटिंग लिमिट नहीं मिलती। स्टील में तो है ना, एक लिमिट के बाद विच वी कॉल एंड्योरेंस लिमिट, उसके नीचे फिटिंग फेलियर नहीं होगा। इफ द स्ट्रेस इज बिलो दिस, फिटिंग फेलियर विल नॉट हैपन, बट इन एल्यूमिनियम एलाइज यू डोंट हैव दैट फैसिलिटी। एक और फायदा हो गया FCC का, अगर आपने अभी जो तारिकाम दिखा रहे थे वो SLV स्पेस लॉन्च व्हीकल ऊपर जा रहा है, तो आजकल दुनिया में ऊपर जाने के लिए ज़्यादातर हो रहा है क्रायोजेनिक ऑक्सीडाइजर, लिक्विड ऑक्सीजन एंड फ्यूल, इधर लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड मैथेन। वो टेम्परेचर है -180 -250, इस तरह के टेम्परेचर की बात हो रही है। तो कंटेनर्स किसके बनाएंगे? अगर आप स्टील में जाएंगे तो यू गेट डक्टाइल ब्रिटल ट्रांजिशन, वो बिल्कुल क्रैक हो जाता है, बिल्कुल फारे, जस्ट लाइक सिरेमिक। ये आपका ये स्टील का ग्राफ। लेकिन FCC alloys like aluminum, they don't show that kind of rapid decrease in ductility. तो हमें एक एडवांटेज मिल गया कि क्रायोजेनिक एप्लीकेशन में we will be using aluminum alloys। अब इसको कहते हैं हम the playground of metallurgist, कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये एल्यूमिनियम अलॉयज में आपको बड़े मज़े की चीज़ें मिलती हैं, पूरा एक सिलसिला अवेलेबल है टू प्ले विद।
कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है कि हमने कहा कि बिकॉज ऑफ डिसलोकेशन यू कैन इजीली डिफॉर्म, लेकिन इसका ये मतलब भी तो हुआ कि अगर आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो यू विल लाइक टू control the movement of dislocation, and that is known as strengthening mechanism. कि make dislocation movement difficult, your material will become stronger, but that is accompanied with lower ductility. तो उसकी डिटेल की बात नहीं करते हम, सिंपली हम करते हैं क्या, जो इनटू फाइन ग्रेन्स, जितनी ग्रेन बाउंड्रीज होंगी डिसलोकेशन मूवमेंट मुश्किल हो जाएगी. कोल्ड वर्क, स्ट्रेन हार्डनिंग, इंक्रीज डिसलोकेशन डेंसिटी. वो तो प्योर मेटल में भी हो सकते हैं, लेकिन इफ यू गो टू एलॉयज वी हैव एडिशनल सोल्यूट एटम्स, वो डिस्टर्ब करते हैं कंटिन्यूटी को, फाइन डिस्पर्शन, और अल्टीमेटली एज हार्डनिंग. एज हार्डनिंग इज अमेजिंग. उसमें आप परसेंटेज इंक्रीज की बात नहीं करते, फैक्टर की बात करते हैं, कितने टाइम्स स्ट्रेंथ बढ़ती है. तो अभी आपको थोड़ा सा डेटा दिखाना है. मार्टेनसिटिक ट्रांसफॉर्मेशन नॉर्मली स्टील में होता है, लेकिन एल्यूमिनियम एलॉयज में भी. देखिए कॉपर एल्यूमिनियम होता है मार्टेनसिटिक ट्रांसफॉर्मेशन. तो अगर आप टू फेज में आएंगे